Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. In the previous lecture we discussed average fixed cost. और आप जान गए कि जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट होता है it is obtained by dividing the fixed cost by the units of output produced. Right? तो चलिए आज हम एवरेज वेरिएबल कास्ट की तरफ आते हैं. एवरेज वेरिएबल कास्ट नाम से ही पता चलता है कि इट्स फर्स्ट वेरिएबल, दैट्स इट इज़ अ शॉर्ट रन कंसेप्ट, एंड देन इट्स एवरेज. और एवरेज जानते हैं आप कि वी गेट एवरेज by dividing the total by the number. Here average cost is the total variable cost. Total variable cost divided by the number of units of output produced. Or we can write average variable cost is equal to VC by Q, where AVC is average variable cost, VC is variable cost, and Q is the volume of output. It's the volume of output. Right? Suppose we are producing 18 units of a commodity, right? At the cost of rupees 180. So our variable cost, total variable cost is 180, and what's the number of units of output? That Q is 18. So 180 divided by 18 is 10. This 10 is our average variable cost. ये चीज़ हम एक टेबल के ज़रिए भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने है. देखिए, दीज आर द यूनिट्स ऑफ आउटपुट, इट्स आवर वेरिएबल कास्ट एंड इट्स आवर average variable cost. देखिए, when we produce 1 unit of a commodity, our variable cost is 10, our average variable cost will be 10, because 10 divided by 1 is 10. Then if we produce 2 units, our variable cost, that's total variable cost, is 18. So what will be the average? It's 9. When we produce 3 units, it goes to 4, 24. When we produce 4, it goes to 28. और एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि as we go on producing more and more units of a commodity, जो हमारा एवरेज वेरिएबल कास्ट, इट गोज़ ऑन डिमिनिशिंग. आप देख लीजिए 6th यूनिट पे तक ये डिमिनिश हो रहा है, लेकिन बट फ्रॉम 7th यूनिट जो हमारा ये वेरिएबल कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट, ये फिर से इंक्रीज होने लगता है. इट बिगिन्स टू राइज. इट्स बिकॉज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर ऑपरेट. पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट करती है, और उस वजह से एवरेज वेरिएबल कास्ट डिमिनिश होता है. आफ्टर अ पॉइंट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स इन, और उस वजह से जो कास्ट्स हैं दे स्टार्ट राइजिंग. देख लीजिए, यहाँ से फिर से कास्ट्स हमारे राइज होने लगते हैं. तो अगर इसी टेबल को हम एक ग्राफ में ट्रांसलेट करें, you will get a curve like this, U-shaped. Here volume of output is shown on x-axis and costs, that's cost is shown on y-axis. तो हमारी जो शेप है AVC, it resembles the English alphabet U, because at first up to the 6th unit जो हमारा एवरेज वेरिएबल कास्ट है ये फॉल होता है. It means that as output increase, average variable cost falls. The curve starts moving upwards from the 7th unit. That's from point this. क्यों? Meaning here by the average variable cost begins to rise. जैसे मैंने आपसे कहा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स टू ऑपरेट. ठीक है ना? तो ये जो यू शेप्ड कर्व है, it shows that initially the costs are falling, and having reached their minimum they begin to rise from the 7th unit. ठीक. और ऐसा क्यों है?
It's because of the operation of law of variable proportions. We have the U-shaped average variable cost curve because of the operation of the law of variable proportions. In the early stage of production of a commodity, जो average variable cost ये fall होता है, then it becomes constant and finally it starts rising. ठीक है ना? So you have to keep in mind the shape of average variable cost curve in short run is U-shaped. अब इस डिस्कशन को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, जो हमारा एवरेज कास्ट होता है, इट इज़ द समेशन ऑफ AFC एंड AVC. शॉर्ट रन एवरेज कास्ट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट. कौन सा समेशन? इट्स द वर्टिकल समेशन, वर्टिकल समेशन ऑफ द टू कर्व्स. और ग्राफिकली अगर हम ये दिखाना चाहें, देख लीजिए, ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कास्ट कर्व है, प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं. और जो हमने अभी एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व ड्रा की, यू शेप्ड है, राइट. थोड़ा सा पीछे खींचना इसे, लाइक दिस. इट्स आवर एवरेज फिक्स्ड कास्ट कर्व, इट्स आवर एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व. ठीक. इट्स वर्टिकली एडिंग अप द वैल्यूज ऑफ AFC एंड AVC when AC, AVC and FC are measured on vertical axis or y axis जिसे हम कहते हैं. इस तरह से हम कह सकते हैं, when our output is OL, एवरेज वेरिएबल कास्ट कितना होगा, इज इक्वल टू LT. एवरेज फिक्स्ड कास्ट कितना है, इट्स LK. ठीक. अब अगर हम लें AC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC, देन AVC इज LK LT, राइट. AFC is LK, it will be equal to LS. Similarly, if our output is OL1, तो यहाँ हमारा एवरेज फिक्स्ड कास्ट कितना है, L1T1. एवरेज फिक्स्ड कास्ट इज L1T1. एवरेज वेरिएबल कास्ट इज again L1T1, because the two, it is equal here, the two curves are cutting each other. तो एवरेज कास्ट कितना होगा, L1S1. This plus this will be equal to L1S1. ठीक. अब अगर हम इन दोनों का समेशन ले, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस, जो हमारी एवरेज कास्ट करो, इट विल बी अगेन यू शेप्ड करो, again because of the law of variable proportions. It tends to fall owing to increasing returns to a factor. फिर स्टेबलाइज होती है कुछ हद तक, कांस्टेंट रहते हैं, एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग. ठीक. आप अच्छी तरह देख लीजिए. तो कहने की जो बात है कि शॉर्ट रन में अगर हम एवरेज कास्ट देखें, तो इट इज़ द वर्टिकल समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट. कैसे? अगर इस पॉइंट को हम लें, हेयर इट इज़ L1 LT प्लस LK इज इक्वल टू LS. हेयर L1T1 प्लस L1T1, क्योंकि ये दोनों एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज फिक्स्ड कास्ट यहाँ इस पॉइंट पे दोनों बराबर है. दोनों का सम लीजिए तो ये बनेगा L1S1. तो अगर ये पॉइंट्स दो हम ज्वाइन करें, तो यू विल गेट ए कर्व लाइक दिस, अगेन यू शेप. ठीक है ना? तो इस तरह से हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट कंसेप्ट डिस्कस कर दिए. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मार्जिनल कास्ट, और आप वहाँ भी जान जाएंगे कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ मार्जिनल कास्ट कर्व, उसकी शेप कैसे होगी, हाउ इट्स एस्टिमेटेड. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.